اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ اسلام ہی کیوں سچا دین ہے، یہ موضوع ہے۔ یہ ایک نشست میں مکمل نہیں ہوگا، کئی نشستیں اس پر ہوں گی، 2 3 4، تو پھر بات آگے چلے گی۔ سر دست جو مین ٹاپک ہے وہ میں نے عرض کیا ہے، اس میں ذرا اخلاقی اقدار کے حوالے سے پہلے جو یہ نشست ہے اس میں یہ گفتگو ہوگی، اخلاقی اقدار کے حوالے سے بات آگے چلے گی، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اصل سوال کیا ہے، کیا اس کا مطلب ہے۔ بے شک اسلام ان الدین عند اللہ الاسلام، آل عمران کی 19 نمبر ہے۔ بے شک دین جو سچا ہے وہ اسلام ہی اللہ کے نزدیک، اس نے ہی ہمیں یہ عطا فرمایا ہے۔ لیکن وجہ کیا ہے، کیوں ہے ایسا؟ ایک اہم سوال جو اکثر ذہنوں میں ابھرتا اور دلوں کو پریشان کرتا ہے یہ ہے کہ عام اخلاقی اقدار تمام مذاہب، بالخصوص بڑے بڑے مذاہب میں یکساں طور پر پائی جاتی ہے۔ سب مذاہب یہی کہتے ہیں کہ جھوٹ نہ بولو، چوری نہ کرو، دیانتدار بنو، کسی پر ظلم نہ کرو، وغیرہ وغیرہ۔ اور اسلام بھی یہی کہتا ہے، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی خصوصیت ہے جس کی بنا پر ہم یہ کہتے ہیں کہ دین برحق صرف اسلام ہے، اس کے سوا اللہ کے ہاں کوئی اور دین قابل قبول نہیں۔ نو انسان کی نجات اور سعادت اسی سے وابستہ ہے، اس لیے تمام اہل مذہب کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسلام قبول کریں۔ ہم یہ کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں؟ اگر وہ خصوصیت جن کی بنا پر اسلام کو یہ کہنے کا حق پہنچتا ہے یہی اخلاقی اقدار ہے، کہا نا اس نشست میں اخلاقی اقدار، تو پھر یہ حق ہر ایک مذہب کو پہنچنا چاہیے۔ یہ تو کوئی معقول بات نہ ہوئی کہ جن خصوصیات کی بنا پر ہم اسلام کو دین الحق قرار دیں، انہی کے مطابق جب وہ دوسرے مذاہب اپنے متعلق اسی قسم کا دعویٰ کریں تو ہم ان کے دعویٰ کو باطل قرار دے دیں اور ان سے اسلام قبول کرنے کا مطالبہ کریں۔ یہ سوال واقعی بڑا اہم ہے، اور جیسا کہ یہ اکثر ذہنوں میں پیدا ہوتا اور قلوب کو پریشان کرتا ہے، یہی وہ سوال ہے جو اس سے پہلے علمی دنیا میں اس وقت سامنے آیا جب مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم نے اپنی تفسیر سورہ فاتحہ میں لکھا کہ عالمگیر سچائیاں تمام مذاہب میں یکساں طور پر پائی جاتی ہیں۔ یہ بالکل ان کا فکرہ ہے، ان کا لفظ ہے، عالمگیر سچائیاں تمام مذاہب میں یکساں طور پر پائی جاتی ہیں، اس لیے کسی مذہب کو دوسرے مذہب پر کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ سب کے اندر عالمگیر یونیورسل ٹروتھ پایا جاتا ہے تو پھر کس کو آپ فوقیت دیں گے؟ یہ اعلان در حقیقت صدائے باز گشت تھی برہمو سماج تحریک کی، جو اس سے پہلے بنگال میں اٹھی تھی۔ کیوں یہ چیز پیدا ہوئی؟ انہوں نے تمام بڑے بڑے مذاہب کی مبینہ آسمانی کتابوں سے بازوں میں خویش اچھی باتوں کو یکساں کر کے ایک مجموعہ تعلیم مرتب کیا اور اسے دنیا کے سامنے یہ کہہ کر پیش کیا کہ اس تعلیم میں تمام مذاہب کی مشترکہ سچائیاں موجود ہیں۔ اس لیے مذہبی اختلافات مٹانے اور سچائی پر عمل پیرا ہونے کا یہی طریقہ ہے کہ تمام اہل مذہب اس تعلیم پر ایمان لے آئیں اور اسے اپنی زندگی کا نصب العین بنا لیں۔ یہ مشترکہ تعلیم انہی اخلاقی اقدار پر مشتمل تھی جو پہلے کہا کہ سچ بولو، بددیانتی نہ کرو، کسی پر ظلم نہ کرو، وغیرہ۔ برہمو سماج تحریک سے بہت پہلے اکبر کے دین الہی کی بنیاد بھی اسی تصور پر تھی، اسی کا مبلغ دعویٰ شکو تھا۔ آگے یہ بھی ان کا حکمران گزرا، جس کے تصوف کی روح سے رام اور رحیم میں کوئی فرق نہیں، اور حقیقت کا جلوہ دیر و حرم میں یکساں موجود ہے۔ اسی کی صدائے باز گشت بھگت کبیر اور سور داس کے بجنوں میں اور شاہ فرید اور سلطان باہو کی کافیوں میں ہر گلی کوچے میں سنائی دیتی ہے۔ یہ اہم بات ہے، سمجھ لیں کہ یہ جو شاہ فرید کی بات ہے اور سلطان باہو کی بات ہے،
और बाबे बुल्ले शाह की बात है, हम बड़े शौक से सबको सुनते हैं। ये लोग वहदतुल वजूद के कायल थे, हर एक चीज में ही अल्लाह, यानी कि वहदतुल वजूद आप समझते हैं उस चीज को, उसके कायल थे। और ये दूसरे भी इसी का कायल थे जो दूसरे हैं। इससे एक और अहम सवाल सामने आता है, और वो ये कि अगर सदाकत इन्हीं अखलाकी इक़दार का नाम है और इन्हीं पर अमल पैरा होना इंसानी जिंदगी का मुंतहा है, तो उसके लिए मजहब की भी क्या जरूरत है। वो लोग जो किसी मजहब के पैरों नहीं, जो खुदा की हस्ती तक के भी मुनकर हैं, वो भी यही कहते हैं कि झूठ बोलना बहुत बुरा है, सच बोलना चाहिए, दयानतदार बनकर जीना चाहिए, किसी पर जुल्म नहीं करना चाहिए। इनका कोई मजहब नहीं है, वो भी कहते हैं। इसलिए या इनसे इनकार नहीं करते। इसलिए मजहब को बीच में लाने की जरूरत क्या है। यही वो तस्वर था जिसकी बुनियादों पर यूरोप में ह्यूमनिज्म की तहरीक उठी, और उसने रेवोल्यूशन विदाउट रिलीजन, मजहब बिला वही के दावे के साथ अपने आप को दुनिया के सामने पेश किया। अगर मजहब का मकसूद और मुंतहा यही अखलाकी अकदार हैं और इंसानी जिंदगी इन अकदार को मान लेने से अपनी मंजिल तक पहुंच सकती है। इंसानी जिंदगी, आखिर इंसानी जिंदगी की को मंजिल है ना, अगर इन्हीं इकदार को मान लेने से आप मंजिल तक पहुंच सकती है, तो फिर ह्यूमनिज्म के दावे को किस तरह ठुकराया जा सकता है। आपने गौर फरमाया कि ये सवाल किस कदर अहम है और उसके इत्मीनान बख्श जवाब का सामने आना किस कदर जरूरी। इस अहमियत और ज़रूरत का तकाजा है कि इसके मतलब संजीदगी से सोचा जाए और इसे इंतहाई गौर व फिक्र से समझने की कोशिश की जाए। अब तक की गुफ्तगू के बाद जो गलत फहमी है, बुनियादी गलत फहमी जो पैदा होती है, वो बात है, बुनियादी गलत फहमी ये है कि दीन को सिर्फ एक अखलाकी ज़ाब्ता समझ लिया जाता है और बस। दीन को एक अखलाकी ज़ाब्ता समझ लिया। दीन चंद अखलाकी अकदार के मजमूआ का नाम नहीं, ये एक हमागीर निज़ाम ज़िंदगी, सिस्टम ऑफ लाइफ है। ये मसला है असल में। मजहब ये बात जो ऊपर हुई है, जो कुछ अच्छी अकदार पाई जाती हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ पाए जाते हैं, बात वहाँ मजहब की है। इंग्लिश में चूंकि रिलीजन ही लिखा जाता है, कहा जाता है, कोई भी खाना कहीं पुर करना हो तो आपका रिलीजन क्या है, हम कह देते हैं इस्लाम है, जो दूसरे हैं वो दूसरा कह देते हैं। ये है वो खराबी। असल में इस्लाम दीन है, इस्लाम मजहब नहीं है। इसलिए ये एक हमागीर निज़ाम जिंदगी है जो हयात इंसानी की हर गोशे को मुहित है। अखलाकी इक़दार इस निज़ाम के अंदर बुरोकार आती हैं, जिनको कहा जाता है ना, ये तमाम मज़ाहब में पाई जाती हैं, ये इसके अंदर बुरोकार आती हैं, या यूं कहिए कि ये निज़ाम इंसान को वो बुनियादें अता करता है जिन पर अखलाकी इक़दार की इमारत इस्तवार होती है। आखिर इन्हें अखलाकी इक़दार की कोई बुनियाद है ना, ऐसा क्यों करता है, ये बात आगे आएगी समझने वाली। मैं सिर्फ थोड़ा सा नुमाया करना चाहता हूँ, इस बात को उजागर करना चाहता हूँ कि ये निज़ाम इंसान को वो बुनियादें अता करता है जिन पर अखलाकी इक़दार की इमारत इस्तवार होती है। बाकी मज़ाहब जो बोलते हैं वो बुनियादें नहीं, वो ऐसे ही बयान होती हैं। आपने कभी इस पर भी गौर किया कि सारी दुनिया ये कहती है झूठ बोलना बुरा है, बददियानती सख्त मायूब है, फरेबदही बड़ी मजमूम हरकत है, लेकिन इसके बावजूद सारी दुनिया झूठ बोलती है, बददियानती आम हो रही है, फरेबदही की गर्म बाजारी है। सवाल यह है कि ऐसा क्यों हो रहा है। इंसान इन तमाम बातों को बुरा कहने के बावजूद इन्हें क्यों इख्तियार किए हुए है। वो इन हरकत को इंतहाई मायूब और मजमूम समझने के बावजूद इन्हें क्यों नहीं छोड़ता। इसकी वजह यह है, ये बात गौरतलब वजह यह है कि लोग या तो इन्हें अखलाकी इक़दार को महज रस्मन और तकलीदन समझते हैं, रस्मन को भी आप समझते हैं, तकलीद को भी समझते हैं, तकलीदन इकरार करते हैं, ऐसे कहते आ रहे हैं, अच्छा है ऐसा कहना, ऐसा करना, नसीहतें करनी, और या इनकी बुनियाद महज जज्बात पर होती है। इन्हें इसका कुछ इल्म नहीं कि इन इक़दार को क्यों इख्तियार किया जाए,
क्यों सच बोला जाए, क्यों झूठ ना बोला जाए, क्यों बदयानती ना की जाए, क्यों फरेबदही ना की जाए, क्यों का जवाब नहीं मिलता कहीं और इनकी खिलाफ वर्जी क्यों ना की जाए। आप किसी शख्स से कहिए कि वो आपको मुतमिन करे कि आप झूठ क्यों ना बोलें। सतही गुफ्तगू से जरा नीचे उतरने के बाद आप मुसलमान से कहेंगे तो वो आपको हवाले दे देगा। कुरान कहता है, या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया झूठ नहीं बोलना। आखिर कोई वजह है कि क्यों नहीं बोलना। मैं अर्ज के अल्लाह का हुक्म कोई भी है, उसके साथ उसकी गर्जो गायत है, उसकी हिकमत है, उसकी बताया है कि ऐसा क्यों करना है, ऐसा क्यों नहीं करना। लेकिन जो अगर गैर मुस्लिम है उसको तो आप ऐसी बात हवाला नहीं दे सकेंगे कि मेरे रसूल ने ये कहा है, वो तो मानता ही नहीं है, या मेरे कुरान ने ये कहा है, वो तो मानता ही नहीं है। आपको अकली दलील मंतकी तौर पर बताना होगा। नीचे उतरने के बाद आप देखेंगे कि उसके पास इस सवाल का कोई माकूल जवाब नहीं होगा। वो दलील बुरहान से आपको आपकी क्यों का कुछ जवाब नहीं दे सकेगा। वो आपको आला वजल बसीरत रैशनली नहीं समझा सकेगा कि झूठ बोलने से आपका क्या नुकसान होता है और सच बोलने से आपका क्या फायदा होता है। ये बात है, ये सवाल है, आपको क्या फायदा और क्या नुकसान होगा। और चूंकि इंसान इसी बात को इख्तियार करता है जिसमें उसका फायदा हो और उसी चीज को छोड़ता है जिसमें उसका नुकसान हो, इसलिए इसका ये इकरार तो महज रस्मी और तकलीदी होता है या जज्बाती अवातफ जज्बाती रुझानात का पैदा करदा, और ना इन अकदार को अला वजह बसीरत समझता है, इसलिए ना उन्हें अपनी जिंदगी का मसलक बनाता है। बस वही कहा ना, तकलीदन चला आ रहा है, कहते हैं, कहना अच्छा लगता है। दीन वो बुनियादी तसव्वुरात अता करता है, मजहब नहीं। दीन वो बुनियादी तसव्वुरात अता करता है जिनकी रूह से इंसानी जिंदगी का मकसद और मुंतहा नुमाया तौर पर उसके सामने आ जाता है। मकसद जिंदगी दुनिया की हर शय की सही सही कदर वैल्यू मुतय्यन करता है, मकसद जिंदगी। और जब अकदार मुतय्यन हो जाएं तो फिर ये बात आसानी से समझ में आ सकती है, इस चीज की क्या वैल्यू है, ये कितनी फायदेमंद है मेरे लिए, कितनी नुकसानदेह है। तो फिर ये बात आसानी से समझ में आ सकती है कि किस बात में मेरा नफा है और किस बात में नुकसान, और कितना कितना, कौन सी कदर ज्यादा कीमती और कौन सी कम। इन बुनियादी तस्वुरात के साथ दीन वो अमली निज़ाम अता करता है जिसमें ये नजरी अकदार जो वर्ज की हैं हकीकत बनकर सामने आ जाती हैं, और इनके महसूस नतायज से इंसान आप महसूस की कर होता है। नतायज से इन्हें इंसान अपनी आंखों से देख लेता है कि इन पर अमल पैरा होने से किस कदर फायदा होता है और इनके खिलाफ वर्जी से किस कदर नुकसान। इससे इसके जज्बात और एहसासात मुतासर होकर अपनी कार फरमाई के लिए सही रास्ता इख्तियार कर लेते हैं, वो नफा नुकसान देखकर। और चूंकि अमल के लिए कुव्वत मुतहरका इंसानी जज्बात हैं, इसलिए इसकी जिंदगी इन बुलंद कर इकदार से हम आहंग हो जाती है। इसी का नाम करैक्टर की बुलंदी और सीरत की पाकीज़गी है। याद रखिए, इंसानी सही और अमल 3 मराहल में से गुजरती है। आपके दिल में ख्वाहिश पैदा होती है, ये ख्वाहिश गैर शौरी तौर पर दिल में बेदार होती है। इसके लिए आपके पास कोई दलील बुरहान या वजह नहीं होती, इसका तल्लुक खालिस जज्बात से होता है। इसके बाद आप इसे अकल के सामने लाते हैं। अगर आपके जज्बात शदीद हैं तो आपकी अकल इस ख्वाहिश के बुरे लाने समान सोचती है और इसके जवाब दलाल बहम पहुंचाती है। इन्हें क्या कहते हैं, जस्टिफिकेटरी रीजन। लेकिन अगर आपकी अकल जज्बात पर गालिब होती है, बहुत अहम, जज्बात पर गालिब होती है, तो फिर वो नफा और नुकसान का मुवाजना करती है, और अगर देखती है कि नफा का पहलू ज्यादा वजनी है तो उस ख्वाहिश को पूरा करने का फैसला करती है। अब आपकी ख्वाहिश डिजायर आपकी मर्जी विश में बदल जाती है, और इसके बाद आपकी कुव्वत इरादी आगे बढ़ती है और इस ख्वाहिश के पूरा करने के लिए अमली कदम उठाती है। इस मरहला में आपकी विश और अरादा यानी कि विल की शक्ल इख्तियार कर लेती है। लेकिन अकल इंसानी अगर वो जज्बात के ताबे ना भी हो तो भी ज्यादा से ज्यादा इस शख्स के जाती नफा या नुकसान का फैसला कर सकती है। इस ख्वाहिश के जायज या नाजायज होने का फैसला नहीं कर सकती। बल्फाज दीगर इंसानी अकल फर्द मुतल्लका को ये बता सकती है कौन सी बात में उसका फायदा है और कौन सी बात में नुकसान।
वो हक और बातिल में तमीज नहीं कर सकती। भूख लगी है और बताएगी कि फलां चीज खा ला तेरी भूख खत्म हो जाएगी, वो चीज जो खानी है वो उसको आगे हलाल हराम बताना वो तुम्हारी मलकियत है नहीं है, वो नहीं अकल बताएगी। ये तमीज सिर्फ अकदार के सामने होने से हो सकती है। अकदार का तयन तसव्वुर हयात की रूह से होता है। तसव्वुर हयात जिंदगी गुजारने का आपका जो तसव्वुर है वो क्या है, असल चीज ये है जो आपकी जिंदगी पर असर अंदाज होता है। हर बंदे का तसव्वुर, हर मजहब का तसव्वुर हयात अलग अलग है। ये मैं बात आगे इंशाअल्लाह बयान करूंगा। इसमें अल्लाह के बारे में भी तसव्वुर है, हर मजहब का तसव्वुर है और वो अलग अलग वो असर डालता है बंदे की जिंदगी पर। और एक अहम तसव्वुर निजात है, बंदे की निजात किस तरह है, ये ईसाइयत में भी है, यहूदियत में भी है, हिंदू मत में भी है, हम में भी है, हम जो मुसलमान हैं। और कुरान क्या बताता है, ये अहम ये चीजें सारी जब निखर के सामने आ जाती हैं तो फिर ये तसव्वुर हयात जो सामने आता है तो फिर पता चलता है कि इस्लाम ही क्यों सच्चा दीन है। ये इन चीजों का जवाब हमें आपको इस्लाम में मिलता है और किसी मजहब में नहीं मिलता। तो इस बार बात इंशाल्लाह हम आगे करेंगे तसव्वुर हयात पर, बात चलती रहेगी, फिर आ जाएगी समझ हमें कि इंशाल्लाह कि इस्लाम ही क्यों सच्चा दीन है। बिल्कुल ये सच्चा दीन है, दूसरे मजहब की तहकीक करना का मकसूद नहीं, बताना ये मुआज़ने के लिए पेश करना कि वो उनका तसव्वुर क्या है और हमारा तसव्वुर क्या है, ये तसव्वुर किस तरह जिंदगी पर असर अंदाज होता है, ईमान जो अकायद है हमारे हमारी जिंदगी पर किस तरह ये असर अंदाज होते हैं। इस पर बात आगे करूंगा इंशाल्लाह, तसव्वुर हयात का असर, ये बात इंशाल्लाह अगली नशिस्त में बयान होगी इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।